तो हमारी डेंटिस्ट्री में 8 अलग स्पेशलिटी होती हैं। ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओरल कैविटी में भी ओरल कैविटी के ਕੋਈ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਬਵ 35 ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Yes. व्हाट इज क्राउन? टेम्परेरी क्राउन इज अनदर कैटेगरी। टेम्परेरी क्राउन का क्या एडवांटेज होएगा फिर? हाँ, टेम्परेरी क्राउन का फर्स्टली सुना है पेशेंट्स को आके कि यार मैं कैप लवाया सी, फिर डॉक्टर अद्धा घंटा नु घसांदा रहा एंड फिर जाके उन्हें फिट किया। अरे उससे क्या होता है, एनाटमी खराब हो जाती है दांत की। टीएमडी की प्रॉब्लम पेशेंट कहेगा सिर दुख रहा है, पिठ दुख रही है, सर्वाइकल हो रहा है, पेशेंट को ये भी लगता है कई बार, बट वो रेडिएट होता है सारा पेन। पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि मेरे को खाना खाने का स्वाद आने लगता है। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ दी हेल्थ आवर। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है, मैं फाउंडर एंड CEO ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਤਾ ਜੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ BDS ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਗੇਨ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਰਾਈਟ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਕਰੈਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਸਟੋਡੋਂਟਿਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੋਡੋਂਟਿਕਸ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਕੈਪ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ RCT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਡੈਂਚਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ TMJ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਥੈਂਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਡਾਕਟਰਸ ਰੀਅਲ ਟਾਕ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਂਡ enjoy this show. Thank you. Welcome to Health Hour, Dr. Smita. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, एंड स्पेशली फॉर दिस कॉज ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू दिस ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म। एंड आई होप कि आपकी स्पेशलिटी का आज लोगों को लेमन टर्म में समझ लगेगा कि हाउ योर स्पेशलिटी कैन हेल्प देम इम्प्रूविंग देयर लाइव्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने हेल्थ आर शुरू करके। लाइक मुझे मेरे कोलीग्स भी बहुत बोलते, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो जैसे पहले पेशेंट्स गूगल करते थे, अब जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो देख के हमें पता लग जाती है। तो वेरी ग्रेट इनिशिएटिव सर। यस, सो थैंक यू। चलिए मैम, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे आपने MDS करी हुई है प्रोस्टोडोंटिक्स में, यस, तो हमारी डेंटिस्ट्री में 8 अलग स्पेशलिटी होती हैं, यू आर वन ऑफ द स्पेशलिटी। तो आप बताइए कि आपकी स्पेशलिटी में कौन कौन से प्रोसीजर्स जो है आप करते हो, कौन सी बीमारियां लेके लोग आपके पास आते हैं, और उनके आप क्या क्या प्रोसीजर्स करते हो? सर फर्स्टली प्रोस्टोडोंटिक्स में सबसे पहले क्राउन एंड ब्रिजेस के केसेस आते हैं। जैसे कोई डैमेज टीथ है, रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ है, फ्रैक्चर टीथ है, उसके ऊपर हम कैप कवर देते हैं, कैप जिसको हम कहते हैं। सेकेंडली स्माइल डिजाइनिंग आती है, इसमें विनियर्स आते हैं। जैसे किसी की माल अलाइन टीथ है, आगे पीछे है, क्राउडेड है, तो उसके अलग अलग, आई नो कि अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट वन ऑफ द ऑप्शंस इज विनियर्स और क्राउन्स। यस, एंड नेक्स्ट इज इम्प्लांट प्रोस्थेसिस आते हैं प्रोस्टोडोंटिक्स में। नेक्स्ट इज डेंचर्स आते हैं हमारी प्रोस्थो में। जैसे डेंचर्स भी बहुत तरह के, रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं, फिक्स डेंचर्स होते हैं। उसके बाद ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਡ, ਉਤਾਰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦੰਦ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ हैं। ये सब आंदे स्पेशलिटी। नेक्स्ट इज TMDs को ट्रीट करना आता है इसमें, जैसे बाय कंजर्वेटिव अप्रोच। ओके यस यार। और ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਪੈਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ yeah, Yes. definitely maxillofacial prosthesis, Yes. ਤਾਂ ਮਤਲਬ obturator. ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ हाँ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ yes, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ oral cavity में भी, oral cavity के बाहर भी, like finger, nose, eye prosthesis, that it is also a part of maxillofacial prosthesis only. ਓਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। Yes, बिल्कुल. ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਰਾਈਟ Yes, yes. ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਬਵ 35 ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ Yes. ਸੋ ਥੋੜਾ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਰਾਊਨ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰਾਊਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕਿੰਗ ਸਰਟਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਟ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਾਊਨ ਓਨਲੀ तो व्हाट इज क्राउन ਕਰਾਊਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਸੇ ਹਮ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। जैसे किसी का रूट कैनाल, आई टोल्ड यू अर्लीयर ऑल्सो, रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है, ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਟੂਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। मालफॉर्म, डैमेज टूथ एंड आरसी ट्रीटेड टूथ, इसमें हम बिल्कुल क्राउन देते हैं। यस, तो बेसिकली क्राउन इज समथिंग विच वी पुट ऑन द टॉप यस, एंड अल्टीमेटली सारा लोड वो बेयर कर लेंदा है Load एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਥ ਦੀ ਲਾਈਫ इज इंक्रीज अंदर से जैसे फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अपने दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, सारा लोड वो कवर ले लेगा हमारा, उसको कवर करना, दैट्स व्हाई मतलब क्राउन। और कितने टाइप ਦੇ ਕਰਾਊਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਬਾਈ 2025 ਆਈ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ सी पहले, बहुत पहले चलते थे मेटल क्राउन, मेटल क्राउन्स के बाद हुई एडवांसमेंट, उसके ऊपर परत चढ़ने लगी वाइट सिरेमिक की, पोर्सलिन की, जिसको हम पोर्सलिन फ्यूज मेटल्स कहते हैं। ओके उसके बाद नाउ बहुत ट्रेंडिंग है मेटल फ्री क्राउन्स। मेटल फ्री क्राउन्स में भी बहुत तरह की वैरायटीज, जिरकोनिया आ गया, लिथियम डाइसिलिकेट आ गया, तो ये सब न्यूअर सिरेमिक्स आ रहे हैं, तो these are the types of crowns, तो मेजरली हम इसको बोलते हैं कि मेटल क्राउन्स है metal free एंड मेटल फ्री Yes, क्राउन्स है yes. और मेटल में आपने पीएफएम आगे जिसमें सेरेमिक की लेयरिंग है एंड किस केस में कौन सा लगवाना चाहिए जैसे आई टेल यू वन थिंग, दीज आर परमानेंट क्राउन्स, एक होते टेम्परेरी क्राउन्स। जैसे अब आप मेरे पास आए रूट कैनाल करा के, कि फ्रंट टूथ का कि रूट कैनाल किया, मैंने आपका टूथ प्रिपरेशन किया, साथ के साथ ऑन द सेम डे आई गिव यू टेम्परेरी क्राउन। टेम्परेरी क्राउन रेजिन सीमेंट से बनते हैं, तो अब ऑब्वियसली आप, है ना, मिलना होता है बाहर लोगों को, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, तो साथ के साथ सेम डे में आपको हम यहाँ पे टेम्परेरी क्राउन्स दे देंगे एंड हमारी लैब में जाएगा वो क्राउन बनने, आपका जो आपने परमानेंट डिसाइड किया होगा, वेदर इट इज़ लिथियम डाइसिलिकेट, पीएफएम और जिरकोनिया, वट एवर इट इज़, तो वो बन के आएगा, देन विल रिमूव द टेम्परेरी कैप एंड गिव यू द परमानेंट वन। ओके तो टेम्परेरी क्राउन इज अनदर कैटेगरी टेम्परेरी क्राउन का क्या एडवांटेज होएगा फिर हाँ, टेम्परेरी क्राउन का फर्स्टली एस्थेटिक्स, एस्थेटिक फंक्शन, जैसे अब बोलने से दिक्कत नहीं आओगी, जो ऑलरेडी क्राउन लग गया, मैं एकदम तो छोटा कर दा दान, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पीक। एंड फंक्शन, जैसे अगर किसी का पोस्टीरियर है, पीछे वाली जाड़ है कोई, जो उन्हें ਚੱਬਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਥਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। आई थिंक इमीडिएटली एस्थेटिक्स भी ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ और फंक्शनल ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ टेम्परेरी क्राउन्स ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ मतलब पेशेंट्स ਨੂੰ ऑन द स्पॉट, लाइक आज आप आए, आपको टूथ प्रेप किया, साथ के साथ आई विल गिव यू टेम्परेरी क्राउन। यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल है कि हम इंटीरियर है, किसी को नहीं लग रहा अच्छा देखने में, तो साथ के साथ टेम्परेरी क्राउन दे के ही वो क्लिनिक से बाहर स्टेप करेगा। हाँ और उसके कोई भी एस्थेटिक्स और फंक्शंस से yes. कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अच्छा मैम ये अभी बीच में ये भी बोला जाता है कि ये क्राउन ना हम ये वाली लैब से बनवाएंगे तो ये वाली लैब से बनाएंगे या ये टेक्नीशियन होगा तो क्या अब जिरकोनिया तो हर बंदा दे रहा है ठीक है अब जिरकोनिया में भी कुछ चाइनीज जिरकोनिया भी है अब ईमैक्स है लिथियम डाइसिलिकेट Yes. अब ईमैक्स अच्छे ब्रांड का भी है आइवोकार का भी है और 3M बहुत चाइनीज भी है तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा या व्हाट डू यू डू एट सिंह डेंटल केयर इट्स सिंह डेंटल केयर, हम क्या करते हैं कि हाँ, हम लोकली कोई, लाइक हमारी प्रेफरेंस होती है लोकली कोई हम क्राउन ना दें। हमारी लैब है एडवांस लैब,
इट्स इन सूरत। ओके तो वी डू द स्कैनिंग। जैसे अब आप आए, आपकी टूथ पे अब मैंने डिजाइनिंग की टूथ की, उसके बाद मैं साथ के साथ स्कैनिंग कर दूंगी आपकी। नो मैनुअल इंप्रेशन। नो मैनुअल इम्प्रेशन, क्योंकि मैनुअल इम्प्रेशन के अपने डिसएडवांटेज थे। पेशेंट को गैग आता था, हाँ इनएक्यूरेसीज आ जाती, कभी बबल आ गया इम्प्रेशन में, और और कई बार पेशेंट कहते हैं मुंह में डाला जी उल्टी वांगू फील हो गया गैग होई। है तो 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ एंड सेकेंडली कि हुन साडी लैब है सूरत में, गुजरात में, तो इतना दूर इम्प्रेशन मैं भेजूंगी वो रास्ते में ही खराब हो जाएगा। हाँ तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि स्कैनिंग कर देंगे। लाइक कैमरा होता है छोटा सा, उसके उसके साथ स्कैनिंग हो जाएगी आपके मुंह की, एंड डायरेक्टली ईमेल कर देंगे हम वो फाइल सूरत में। तो वो ऑन द स्पॉट हमें टेक्नीशियन चेक करके बता देंगे कि हाँ दिस इज़ ओके, तो साथ के साथ वो प्रोसीड कर देंगे। तो हम लोकल लैब से, मतलब वी डोंट प्रेफर टू डू इट फ्रॉम लोकल लैब। एंड एडवांस इज वन द बेस्ट लैब बेस्ट इन इंडिया लैब्स इन इंडिया। राइट। और 3D स्कैनिंग से आई वांट टू ऐड वन थिंग हेयर आल्सो कि 3D स्कैनिंग से क्या फ़र्क रहता है कि मान लो आपकी डिज़ाइनिंग में कहीं कुछ छूट गया, छूट गया कोई अंडरकट हो गया, तो वो एडवांस लैब वाले हमारे टेक्नीशियन जो हमारे साथ पार्टनर हैं वो 10-5 मिनट में बता देते हैं कि मैडम या सर यहाँ से इसको ठीक कर दो। तो एंड वन थिंग आई टेल यू कि जब वहाँ से अच्छी, बहुत अच्छी लैब है, वहाँ से बन के आता है ना, जस्ट आई हैव टू फिट इट एंड सीमेंट इट। उसमें कुछ ना घिसना पड़ता है मुझे, ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए पॉलिश भी नहीं खराब हो रही क्राउन की। हाँ जैसी बन के आए वैसी बस लगा दिया। एंड कई बार मतलब हमें सुना है पेशेंट्स को आके कि यार मैं कैब लवाया सी फिर डॉक्टर ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਘਸਾਂਦਾ ਰਿਹਾ एंड फिर जाके उन्हें फिट कीता। अरे उससे क्या होता है, एनाटॉमी खराब हो जाती है दांत की, दांत की नेट नहीं खराब हुई, सरफेस पॉलिश नहीं पॉलिश नहीं, रफ हो गया, रफ हो गया, प्लाक और जमेंगी, और जो खाना मटेरियल की थिकनेस था वो भी कम हो गई। तो अच्छी लैब से कराने का तो बहुत एडवांटेज है। राइट। सो इसका मतलब ये जो क्राउन्स हैं ये मेटल किसको लगवाने चाहिए और मेटल फ्री किसको लगवाने चाहिए? और एक ये बात बताओ पहले मेटल और मेटल फ्री की। सेकेंडली ये भी बताओ कि ईमैक्स क्राउन जो लिथियम डाइसिलिकेट है, ईमैक्स के नाम से ये इट इज़ वेरी फेमस, ईमैक्स कहाँ पे करवाना चाहिए और जिरकोनिया कहाँ पे करवाना चाहिए? चलो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद ईमैक्स। मेरे फेवरेट क्राउन इंटीरियर में आई प्रेफर ऑलवेज लिथियम डाइसिलिकेट। फर्स्टली लिथियम डाइसिलिकेट इज लाइक लाइफ लाइक ट्रांसलूसेंसी है उसकी, बहुत ही नेचुरल अपीयरेंस आती है उसकी, नेचुरल जैसे पता ही नहीं लगता कि ये नकली लगा है या ये असली लगा है। तो इंटीरियर में आई विल प्रेफर दैट कि लिथियम डाइसिलिकेट करो। अब कमिंग ऑन टू जिरकोनिया और मेटल, आई विल स्टार्ट विद मेटल। मेटल में क्या है कि पहले चलता था सिल्वर कलर दिखता है आपके दांत में, तो एस्थेटिकली नहीं बढ़िया लगता वो, कि पेशेंट्स कहते कि क्या काला चांदी काले कलर मूंछ चांदी जो पा लगा है। हाँ Yes, जी, हाँ जी, हाँ yes, जी। yes. देन उसके बाद आया, उसके ऊपर हम परत चढ़ाते हैं पोर्सलिन की, पोर्सलिन फ्यूज मेटल। तो पोर्सलिन फ्यूज मेटल क्या है, थोड़े दिनों बाद पेशेंट चू करेगा, लेयर उतरने लग जाती है मेटल सिरामिक सिरामिक की लेयर उतर जाती है क्योंकि मेटल ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ, फ्यूज किया गया। तो थोड़े सालों बाद क्या होगा, आपका ऐसे मेटल दिखेगा, पैच ऑफ मेटल। अगर इंटीरियर में कराए तो बहुत ही बुरा लगेगा, यू कांट गो आउटसाइड विद दैट पैच। तो इसलिए इंटीरियर्स में हमें मेटल फ्री में ही जाना चाहिए, जैसे लिथियम डाइसिलिकेट, जिरकोनिया, अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन एंड ऑल दैट। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द जिरकोनिया पार्ट मोनोलिथिक फॉर पोस्टीरियर। अपनी जाड़ा ली अपनी मोनोलिथ जिरकोनिया इज गुड मटेरियल। उसमें कटिंग भी बहुत कम होएगी क्योंकि जिरकोनिया की स्ट्रेंथ पीएफएम से बेटर है। तो जब हम पीएफएम की टूथ डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है, टूथ स्ट्रक्चर ज्यादा लॉस होता है, तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू जिरकोनिया। तो पोस्टीरियर में तो अगर ब्रक्सिज्म नहीं है, पेशेंट को कोई ज़्यादा, क्राउन हाइट इज नॉर्मल, तो वी कैन गिव जिरकोनिया ऑल्सो। और वन मोर थिंग कि जो जैसे ब्रिजेस में आई वांट टू ऐड हियर वन थिंग कि अगर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस हैं, लॉन्ग स्पैन तो- ब्रिजेस में जिरकोनिया 4 यूनिट में आई डोंट प्रेफर गिविंग जिरकोनिया। तो वहाँ पे आपको मेटल इज द Metal. प्रेफरेबल चॉइस। और अगर अप टू 3 यूनिट ब्रिज है तो ईमैक्स इज द चॉइस। आई विल से यू लाइक हमारा ऐसा है कि हम डोंट बी जिरकोमेनिया। जिरकोनिया लगाएंगे। जिरकोनिया हर केस में इंडिकेटेड नहीं होता। जैसे अब लॉन्ग स्पैन है, क्या होता है कि जिरकोनिया, जैसे हम कहते हैं मेलिगो होती है, जिरकोनिया में वो मेलिगो है कि थोड़ी सी दबाई तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, तो बेंड नहीं होगा जिरकोनिया। तो उस केस में मेटल सिरामिक प्रेफर्ड है। यस, तो लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में मेटल पे जाना चाहिए आपको।
एंड अगर सिंगल क्राउन है, एस्थेटिक्स की डिमांड इज वेरी हाई, तो यू शुड गो फॉर ईमैक्स लिथियम and lithium disilicate. And one more advantage of lithium disilicate over zirconia is कि वो opposite natural दांतों के साथ नहीं है. जिरकोनिया स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है उसकी, वो ऑपोजिट को But I really appreciate I've seen you working at Singh Dental Care कि ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ what is good for the organization ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ what is good for the patient. And this is one of the core value of Singh Dental Care also ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ, right? So ultimately that will end up getting more blessings, more business, whatever you can say. If you do the treatment in a right way, in a transparent and honest way, तो बाबा नानक बैठे ही है सारा काम करने ਨੂੰ. बिल्कुल बिल्कुल राइट. चलिए मैम, अब इसके आगे बढ़ते हैं. आजकल ये स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर इज वेरी इन. लोग बोलते हैं हमें हॉलीवुड स्माइल चाहिए. हमारे पास कितने एनआरआई पेशेंट आते हैं, है ना? यू हैव ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, बल्गेरिया, इनफैक्ट, राइट? यू हैव ट्रीटेड द पेशेंट जिनके पास जो ट्रांसलेटर भी लेके आए थे. बल्गेरिया यस. तो यंग ये क्या है स्माइल डिजाइनिंग, क्या प्रोसीजर है? क्यों लोग पंजाबी जी कहते भी वेरी फैन या वेरी फैसिनेट अबाउट दीज थिंग्स कि यार स्माइल डिजाइनिंग करानी है? सर आजकल इंस्टा का ज़माना है, इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है आजकल, सोशल मीडिया फ्रीक्स हैं लोग, लाइक दे वांट, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड. यस तो गुड वो तभी लगेंगे जब उनकी स्माइल अच्छी होगी. जी. तो स्माइल डिज़ाइनिंग में क्या है, मैंने पहले भी जैसे मेंशन किया, क्रुक्ड टीथ है, मालालाइन टीथ है, फ्लोरोसिस आपके दांत में, डिसकलर्ड आपके दांत, आपको नहीं अपनी स्माइल अच्छी लग रही, उन केसेस में हम स्माइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. उसमें क्या करते हैं हम कि हम 0.5 mm ऑफ योर इनेमल शेव ऑफ करते हैं, टूथ प्रेप करते हैं. उसके बाद हम लिथियम डाइसिलिकेट के विनियर थिन लाइक शेल्स ऑफ लिथियम डाइसिलिकेट हम उस पर सीमेंट कर देते हैं, बॉन्ड कर देते हैं. तो ये बहुत मतलब लंबा प्रोसीजर है वैसे तो. उसमें क्या करते हैं, सपोज यू कम टू मी फॉर स्माइल डिज़ाइनिंग, तो आई विल टेक योर स्कैन फर्स्ट. सारा स्कैन लेके आई विल सेंड इट टू लैब. आई विल आस्क योर एक्सपेक्टेशन कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कैसी स्माइल चाहते हो. हॉलीवुड सबकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, कईयों को गैप चाहिए फ्रंट में, कईयों को नहीं चाहिए, कईयों को बिल्कुल गोल्डन प्रपोर्शन में चाहिए टीथ अपने. तो आफ्टर टॉकिंग टू यू, टेकिंग योर एक्सपेक्टेशंस, आई कन्वे टू लैब. फिर लैब आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमें वो डिजिटली बना के देंगे मॉडल्स, जिसे डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग हम इसको कहते हैं. जी. तो जब डिजिटली स्माइल डिज़ाइन आ गई हमारे पास, कास्ट में जो आपके एंड रिजल्ट होगा वो पहले ही हमारे पास आ जाएगा. तो हम आपको उसको शो करेंगे कि आपका एंड रिजल्ट ये होगा. आपके मुंह में भी आई गिव यू अ मॉकअप, तो उससे आपको पता लग जाएगा आपका एंड रिजल्ट यही है. मतलब पहले उसको पहले मुंह में end टेम्पररी लगा के दिखा दोगे कि दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग. ओके. यस यस. और इसमें बहुत है एडवांसमेंट है, आपका फेस स्कैन लिया जाता है, इंट्राओरल स्कैन है, उसके साथ सारा जैसे मिड लाइन है आपकी, वो भी फिर स्माइल डिज़ाइनिंग में सारा आपका मिड लाइन का, प्यूपिल का डिस्टेंस सब लेके वो बनता है, आपका स्माइल डिज़ाइनिंग होता है. उसके बाद बस और जब पेशेंट ने एग्री कर दिया फिर जैसे अब पेशेंट ने एग्री किया, आई लाइक दिस शेप एंड आई लाइक दिस कलर व्हाटएवर. यस. अब आपको लगा कि हाँ मेरा यहाँ से ठीक नहीं है, इमीडिएटली करेक्ट इट एंड अगेन टेक अ स्कैन एंड सेंड इट टू लैब कि हमारे पेशेंट को यही चाहिए और हमें ऐसा ही फाइनल रिजल्ट चाहिए. और अभी तक हमने उसके नेचुरल दांत को कुछ छेड़ा नहीं, है. अभी इट कुछ इज जस्ट कि हम सब कुछ उसको दिखा रहे हैं, कि एंड रिजल्ट आपका ये होने राइट ऑन द पेशेंट्स माउथ. माउथ. यस. ओके. एंड देन जब पेशेंट ने अप्रूव किया तब उसके बाद विद योर कंसेंट आई विल डू योर टूथ प्रेप, स्टार्ट योर टूथ प्रेप. देन उसके बाद आई अगेन टेक अ स्कैन एंड सेंड इट टू लैब एंड देन इमीडिएटली आई गिव यू टेम्परेरी क्राउन्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको साथ के साथ टेम्परेरी क्राउन दे दीजिएंगे. फिर उसके बाद जब आपके विनियर्स हमारे पास बन के आएंगे, आपके मुंह में पहले उसको लगा के ट्राई करवाया जाएगा आपको कि आपको अब अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ चेंज तो नहीं करवाना. देन ओनली आपको कलर अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लगने के बाद उसके बाद हम उसको बॉन्ड करेंगे. यस. and eventually the patient will end up getting her or his dream smile. Yes. Right? And मैम ये जो स्माइल डिजाइनिंग का प्रोसीजर है veneers का, मतलब यूजुअली कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, मतलब आइडियली टाइम ड्यूरेशन एज इन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे? मान लो कोई पेशेंट अपना स्माइल डिजाइनिंग करवाना चाहता है तो उसको कितने डेज की विंडो रखनी है अपने पास? लाइक राउंड अबाउट 1 वीक to 10 days तो रखनी चाहिए. हाँ, तो 10 डेज का ये प्रोसीजर है. 10 डेज में सब कुछ हो जाएगा. I'm considering
प्लस माइनस 2-3 days more also अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो कुछ भी है ना। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि पेशेंट को कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं बाद में दोबारा नया बना दिया। लैब हाँ से बनवा के मंगवाए। तो अब ये नहीं बोलते पेशेंट को कि नहीं जी ये बन के आ गया अब तो यही लगेगा। नहीं ऐसे से यू नो इट, हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा, हमारा प्रोटोकॉल है, पहले हम आपको ट्राइंग कराएंगे सारा, आप मिरर में लो अपने रिलेटिव्स अटेंडेंट्स को सबको दिखाओ, इफ यू से ओके देन ओनली आई बॉट, अदरवाइज यस नो। यस एंड जब तक पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तब तक विल कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, राइट? यस ब्यूटीफुल। एंड एक ये भी क्वेश्चन बहुत रहता है आफ्टर गेटिंग स्माइल डिजाइनिंग और वेनियर्स की, इसकी लाइफ क्या है, मतलब कब तक ये चलेगा ये प्रोसीजर? क्योंकि अगर मान लो मैंने अपने टीथ वाइटनिंग करवाए हैं, ब्लीचिंग करवा ली है, कुछ भी करा लिया है, तो मेरे को पता है डेंटिस्ट बोलता है कि ये 5-6 महीने चलेगा अप टू मैक्सिमम 1 year, राइट? इसकी क्या है लाइफ? सर दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन आप अपने विनियर्स को कैसे मेंटेन कर रहे हो, आपकी ओरल हाइजीन कैसे, आपकी हैबिट्स कैसे है। लाइक इफ यू आर क्लेंचिंग योर टीथ या ब्रक्सिज्म है आपको, ब्रक्सिज्म क्या होता है? ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੰਦ ਆਪਸ ਕੇ ਸਾथ रीचते हैं बंदे, रीचते हैं, yes, हाँ, that okay. is like you are doing proper flossing as advised by the doctor, brushing up twice कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, योर ओरल हैबिट्स, योर चूइंग हैबिट्स, सब पे डिपेंड करता है। और अगर कोई बंदा फ्लॉसिंग भी कर रहा है, उसको ब्रक्सिज्म की हैबिट भी नहीं है, क्लेंचिंग भी नहीं कर रहा, 2 टाइम ब्रश भी कर रहा है, 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास आके स्केलिंग भी करवा रहा है, yes, very तो फिर ये कब तक चल सकते हैं? मतलब कुछ निकल जाएगा 10-15 साल? yes, usually life of caps, crowns and bridges is 10 to 12 years according to the studies. अगर if you are following all the protocols as said by you, तो 10 to 15 years आराम से एवरेज चल जाता है, उससे ज़्यादा भी होता है, हाँ, बट एवरेज आई एम टेलिंग यू। एवरेज है, मतलब किसी का 15 साल चला तो एवरेज का मतलब है तो किसी का 20 भी तो चला, हाँ यस तो 20 उसका चला जिसने ध्यान दिया। बिल्कुल। इट इज द सेम थिंग कि ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਿਲਾ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਰਤੀ, तो दैट मीन्स कि veneers में स्माइल डिजाइनिंग में अगर पेशेंट अपनी दी हुई ये कुछ इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करे तो दिस कुड लास्ट फॉर 15-20 years also, because Emax or lithium disilicate they act as natural teeth. एक्चुअली आई टेल यू कि लैब भी बहुत वारंटीज देती है, जैसे जिरकोनिया की हमने बात की थी, जिरकोनिया की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अब आजकल 5th चल रही है जिरकोनिया की। तो इट ऑल लाइक आपकी लैब अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ हमने बस ले लिया पैसा पेशेंट से और कर देना कुछ भी। यू शुड नो इफ यू आर डूइंग क्राउन जिरकोनिया, यू शुड नो 3Y जिरकोनिया क्या है, 4Y क्या है, 5Y क्या है, देन ओनली आप किसी को गाइड कर पाओगे ना पीछे की अपने टेक्नीशियन को कि आपने कैसे करना है। Which is better? Why? I'll tell you, 3Y is like monolith zirconia for posterior, strength बहुत ज़्यादा है, ट्रांसलूसेंसी बहुत कम है, ओपेकनेस है उसमें, हाँ, तो आई प्रेफर इट फॉर पोस्टीरियर थे, जाड़ा नहीं अपनी। ठीक दाना वास्ते। देन 5Y इज फॉर इंटीरियर्स, एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ कम है कंपैरेटिवली बट ट्रांसलूसेंसी बहुत ज़्यादा है, एंड 4Y इज इन बिटवीन ऑफ बोथ, कि आपको एस्थेटिक्स भी चाहिए बट आपकी बाइट भी बहुत हार्ड ट्रॉमेटिक है, डीप बाइट है, तो उसमें हम कट बैक डिज़ाइन भी दे देते हैं कि अंदर से दो आप 3Y या 4Y एंड बाहर से 5Y, ये आपको पता होगा, देन ओनली यू कैन गाइड योर लैब। यस, और ਇੱਥੇ मैं सारे पेशेंट्स ਨੂੰ ਵੀ यही इनकरेज करना चाहूँगा कि वाइल गेटिंग योर क्राउन फ्रॉम अ डेंटिस्ट यू हैव ऑल द राइट कि पूछो कि अब ये क्राउन कौन सा लगा रहे हो, जिरकोनिया लगा रहे हो, लिथियम डाइसिलिकेट लगा रहे हो, पॉइंट नंबर 1। जिरकोनिया के ब्रांड्स भी बहुत होते हैं, कौन से ब्रांड का जिरकोनिया यूज होता है? आई वाज अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट ओनली, यार जिरकोनिया के तो चाइनीज ब्लॉक्स भी आते हैं, बिल्कुल, एंड जिरकोनिया के जर्मन ब्लॉक्स, यूएस के ब्लॉक्स भी आते हैं, आइकोलार के भी आते हैं, राइट? तो सेकंड पॉइंट आता है कि अगर जिरकोनिया लगा रहे हो तो कौन से ब्रांड का लगा रहे हो। देन थर्ड पॉइंट इज दैट्स फाइन, ब्रांड इज आल्सो फाइन, लेकिन जो लैब है, टेक्नीशियन है, वो कहाँ का है, क्या उसको काम आता है, डिजाइनिंग करनी आती है, मार्जिन तो नहीं शॉर्ट छोड़ दिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज जो डॉक्टर लगा रहा है क्या वो क्राउन का स्पेशलिस्ट है, कि कहीं आपने ऐसे तो नहीं कर लिया कि आपने मसूड़े वाले डॉक्टर से कैप लगवा लिया हो या सर्जरी वाले डॉक्टर से कैप लगवा लिया हो। तो अगर ये 4 फैक्टर्स का पेशेंट ध्यान रखेंगे, डिफिकल्ट चीजें नहीं है गाइस, अगर आप ध्यान रखोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग गुड ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, एंड यू हैव ऑल द राइट। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं सिंह डेंटल केयर में, हम ये बोलते हैं
कि यार पेशेंट हैज ऑल द राइट, ਇਹ ਸਾਡੀ बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ਦੀ ethos है। लाइक सर इधर तो हम उनको वारंटी कार्ड्स भी लाइक पेशेंट को बताते हैं कि आपका ये ब्रांड का है। ऑथेंटिकेशन कार्ड्स भी होते हैं हमारे पास, आइवो क्लार्क के, हाँ। अमन गिरबैक के, हाँ ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का कंबाइंड ब्रांड है ये। हाँ, अमन गिरबैक, यस यस यस, एंड ये इट इज बेटर देन जिरकोनिया। लोगों को पता ही नहीं है, Yes, yes. बट बीइंग हमें जी, अवेयर हाँ। पेशेंट बनना है। जूते लेने हैं अपन ना, शूज लेते हैं, उसके भी ब्रांड्स हैं, लोकल ले लो, नाइकी ले लो, प्यूमा ले लो, स्केचेस ले लो, हाँ। सेम वे जिरकोनिया। सेम विद जिरकोनिया, ये नहीं कि जिरकोनिया वो इतने का लगा रहा है, कुछ इतने का लगा रहा है। Yes. अगर कोई ऐसा डेंटिस्ट है जिसने अपनी मास्टर्स डिग्री की हुई है, एक्सपीरियंस है उसको प्रोस्थो में, अरे वो क्राउन ऑल द वे बेटर ही लगाएगा दूसरे डॉक्टर से, राइट? ब्यूटीफुल आंसर। मैम अब इसके अगले सेगमेंट में हम चलते हैं। आजकल ये TMDs बहुत चल रही हैं, वो कहते हैं मेरे को TMJ इशू है, लोग ऐसे आके बोलते हैं, या कई बार लोग ऐसे सिम्टम लेके आते हैं कि यार मेरे को ना 1 साल से हेडेक हो रही है, वो न्यूरो के पास जाए जा रहे हैं, न्यूरो वाला बोला यार MRI में तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, तो ENT के पास गई, ENT कहता तुम्हारा कान भी ठीक है यार, सब कुछ है, एंड व्हेन दे कम टू अ गुड डेंटल क्लिनिक जहाँ पे ये सारी स्पेशलिटी है, तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेक्ट होती है कि यार ये उसका इशू नहीं था, न्यूरो का, ENT का नहीं था, ये तो टीथ का इशू था। थोड़ा TMD के बारे, TMJ इश्यूज क्या है, TMJ जॉइंट क्या है, इसके आप बारे में आप 1-2 मिनट बताओ, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। TMJ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ में ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ, ਪਾਲਪੇਟ ਇਟ, ओपन बंद करोगे आप पे मूवमेंट फील होगी आप। यस, हाँ तो ये थल्ले वाला अपना जबाड़ा है, ये इथे साइनोवियल फ्लूइड ਹੁੰਦਾ है, उथे जॉइंट बनता है अपना। हाँ तो ये TMJ। इसके बाद क्या होता है कि सारे फैक्टर्स जब रूल आउट हो गए, न्यूरो वाले, ईयर वाले, सब, देन पेशेंट कम्स टू डेंटल। तो हम बेसिकली ये देखते हैं पेशेंट का कोई पोस्टीरियर टीथ या कोई जाड़ मिसिंग तो नहीं हैगी, अच्छा, कि कोई वो इक्को पासे तो नहीं खाना खाई जा रहा है, एक ही जगह उसका सारा फोर्स लगे जा रहा है। तो ओवर यूज ऑफ मसल्स, हाँ ओवर यूज ऑफ मसल्स लीड टू TMDs। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनफैक्ट नॉट दिस, लाइक स्ट्रेस किन्ने ਉਹਨੂੰ अपनी लाइफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे फैक्टर्स है जो TMD टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को डिजीज करते हैं। यस ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ, कस गए। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ TMJ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ TMD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? TMD की प्रॉब्लम पेशेंट कहेगा सिर दुख रहा है, पिठ दुख रही है, सर्वाइकल हो रहा है, पेशेंट ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਉਹ रेडिएट ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ पेन। हाँ तो इतने पूरा कहेगा दांत दर्द हो रहा है, कोई सिम्टम, दांत आपके बिल्कुल ठीक होंगे, बट हम देखेंगे सारा, फिर हम आपका एग्जामिनेशन करेंगे TMD का, TMJ का, पालपेट करके, एक्सरेज करके, वो सारा उसके बाद डायग्नोसिस बनेगा उसका। यू वर सेइंग अबाउट एट्रीजन, है ना, जिवें दंद किस ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੰਦ ਕਿਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਫੇरेंसेस ਹੋ ਗਈ ਦੰਦਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। हाँ तो उस केस 'ਚ ਸਾਨੂੰ बहुत इंपॉर्टेंट है फुल माउथ रिहेबिलिटेट करना, मीन्स कि अपने दांत के नेचुरल स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना। हाँ, जितनी हाइट जितनी हाइट पहले थी, बना के भेजी थी उतनी उतनी height को- रीगेन करनी, यस यस तो FMR का केस बन जाता है ना। फुल माउथ। एंड गाइस मतलब अगर आपको ये चेक करना, आप इस चीज़ को समझने के लिए ना, जो तो खड़े होने हैं, व्हेन वी स्टैंड ऑन अवर 2 feet, राइट। अब आप अगर ये सुन रहे हो तो 1 मिनट खड़े हो जाओ दोनों पैरों पे, राइट। अब आप एक पैर उठा लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो जो आपकी ये स्पाइन है ना, ये टेढ़ी हो जाएगी, राइट। दोबारा से करो, अब दोनों पैर पे खड़े हो, अब एक पे शिफ्ट करो, तो आपकी पीछे बैक ऐसे शिफ्ट हो रही है, स्पाइन टेढ़ी हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस तो होता है ऐसे। लेकिन आप एक साइड पे शिफ्ट क्यों हो गए, जब आपकी दूसरा पैर नहीं होगा। तो सेम वे जब हम मुंह बंद करते हैं तो हमारा प्रेशर दोनों साइड पे डल रहा है। यस अब अगर एक साइड पे दांत नहीं है, अब आप एक साइड पे बंद करो ऐसे, आपको देखो इधर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और अगर आपके घर में आपकी वाइफ, बच्चों या पेरेंट्स के मुंह में दांत नहीं है, दे विल एंड अप गेटिंग TMJ प्रॉब्लम्स इवेंचुअली, राइट। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्या ग्रेड होगा, कब आएगी, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट दिस इज द टॉप मोस्ट रीजन फॉर TMJ प्रॉब्लम्स, राइट। यस और अगर आपके मुंह में भगवान ने दोनों साइड दांत बनवा के भेजे हैं
ਰਾਈਟ ਪੱਤੀ ਦੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ बैलेंस हो रहे हैं वो सर दिस इज लाइक कि दो जाने का काम एक जना कर रहा है तो वो तो एग्जर्ट हो जाएगा उसमें हाँ। सिम्टम्स भी आएंगे वो पेन सिम्टम्स भी आएंगे आपकी एक साइड चल रही है थक आपका जाएगा वो थकता है बिल्कुल। इनफैक्ट मैडम मैंने जब ये अपनी क्लिनिक में देखा पेशेंट्स को जब वो फुल एफएमआर का काम होता है कंप्लीट पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैंने खाना खाने का स्वाद आने लग पिया यस यस मैंने रियलाइज किया बाद में मैंने सोचा ਸਵਾਦ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਦੰਦ ਥੋੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ बिल्कुल ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਦਾ आई enjoyed the food यस यस right and जब आपका एक कैब चल रहा था तब आपको भी दिक्कत हाँ हुई थी मेरा खुद का एक कराऊंगा डॉक्टर साहब ने किया है ना तो मेरे को लगा था कि यार पेशेंट कितना सफर करते हैं ना सो अल्टीमेटली गाइस अगर ऐसा कुछ इश्यूज है साइंस में हम इसके क्या रहेंगे पेन होगी पेन होएगी pain डिस्कम्फर्ट होगी? क्लिकिंग साउंड आएगी हाँ ਜਬੜਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਜੌ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ Jaw lock ਕਲਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ clicking sound, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिस्कम्फर्ट ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਆਫ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਰਟੀਬਰੇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Yes. ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗਾਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ Yes. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੋਡੋਂਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਓਰਲ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਥੋ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बिल्कुल ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ you should go to a specialty and Singh Dental Care 'ਚ ਚਲੋ fortunately all the specialists are available under one roof and ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ then you should go for MRIs ਨਿਊਰੋ ਕੋ ਜਾਓ ENT ਕੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਸਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣਗੀਆਂ बिल्कुल सर राइट मैम तो ब्यूटीफुल डिस्कशन अराउंड TMJ मैम मूविंग फॉरवर्ड आप बताओ इसमें आपने एक बात करी थी FMR राइट आजकल बहुत सुनते हैं कि FMR के केस है जी FMR आपका ट्रीटमेंट होगा तो ये थोड़ा सा तो आपने बता ही दिया TMJ में थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में कि व्हाट इज क्यों जरूरत पड़ती है इसकी ओके और क्या है ये? FMR इज बेसिकली कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है घिस गए हैं लाइक डिसकलर्ड है कुछ भी है फ्लोरोसिस है डैमेज्ड है तो हम पूरे मुंह में कैप दे देते हैं लाइक ऊपर दांतों में भी और नीचे दांतों में भी टू रिस्टोर इट्स फंक्शन एंड एस्थेटिक्स कि कम भी हो वधिया तरह करन ते देखन च भी सोने लगन तो उसमें क्या होता है हम पहले वही सेम स्कैनिंग करके आपके मुंह की आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देंगे कि हम अपनी आपकी इतनी बाइट लेनी पड़ती है उसमें कितना इंक्रीज करना है तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वैसे तो तो yes it took you 10 years to learn it is a complex procedure yes तो उसमें हम आपका सारा आपको फाइनल दिखाएंगे कि हम अपना आपका इतना इंक्रीज कर रहे हैं आपका क्राउन का साइज तो हम देखेंगे और इतना इंक्रीज करने के बाद आपके TMJ में कोई स्ट्रेस तो नहीं आ नहीं आ रही, रहा हाँ। पेन तो नहीं हो रहा डिस्कम्फर्ट तो नहीं आ रहा इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी स्टार्ट विद टूथ प्रिपरेशन टूथ को लाइक डिजाइन करके उसके बाद हम इम्प्रेशंस लेंगे स्कैन करेंगे स्कैन करेंगे ये स्कैन करके फिर लैब में भेजेंगे फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें फुल माउथ रिहेबिलिटेशन के केसेस में होता है फेस बोन ट्रांसफर करनी होती है इट्स लाइक अ रिलेशन ऑफ योर स्कल ऑफ योर मैंडिबल टू द स्कल तो अच्छा वो आपका मैंडिबल स्कल के साथ किस कैसे रिलेशन में relation में है? ऐसे 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 किस रिलेशन में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो वो फेस बोन ट्रांसफर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है जैसे है ना वो वाइड व्यू आर्टिकुलेटर आता है वो US से आता है तो उसमें हम सारा फेस बोन ट्रांसफर करते हैं देन वी अगेन सेंड दैट टू द लैब वो रिकॉर्ड्स को हम लैब भेजेंगे फिर लैब क्या होगा आप तो अब लैब में जा नहीं सकते ना बार बार तो लैब साइम्युलेट कर लेगा आपके जॉ को उस आर्टिकुलेटर में लाइक 2 ऐसे रिंग्स होती हैं उसमें साइम्युलेट हो जाएगा वो पेशेंट तो बार बार पेशेंट को जाने की जरूरत नहीं है वो सारा काम उस आर्टिकुलेटर पे हाँ तो लैब वाले को लगेगा कि अब पेशेंट के मुंह में मैं काम कर रहा हूँ Yes, yes. एग्जैक्टली हाँ इससे क्या होता है थोड़ा एक्यूरेट हो जाता है सारा प्रोसीजर जो आपके मुंह में बाइट आ रही है एक्लूजन आ रही है जैसे दांत मिल रहे हैं जिਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ उदा ही आर्टिकुलेटर से मिल रहे होंगे तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं उससे तो वो हम सारा करते हैं ऑब्वियसली एडवांस भेजा फिर वहाँ से आएगा हमें फिर पेशेंट को दिखाएंगे कि ठीक है आपको अच्छा लग रहा है तभी उसके बाद भी सीमेंटेड तो इसके अराउंड ये पेशेंट ये भी सोच सकते हैं कि भाई
मेरे मुंह में सारे दांत हैं। अभी रिसेंटली आपने एक एफएमआर का केस किया, मैंने देखा था, उसके मुंह में आपने आई थिंक 28 क्राउन दी। यस 28 अब वो पेशेंट ये भी सोच सकता है कि यार मेरे मुंह में 22 दांत तो है ऑलरेडी, ठीक है घिस गए हैं, फिर क्या हुआ, काम तो चल ही रहा है। आप बोले 28 दांतों में क्राउन लगा दिए, मतलब एग्जैक्टली स्टिल क्यों लगाए क्राउन? करे क्या होता अगर वो नहीं कराता तो? अगर वो नहीं कराता, पहले आपके दांत इतने से इतने रह गया, अब आप उसको ओवर यूज करे जा रहे हो, पहले बात तो वो और घिसते रहेंगे, एक लेवल आएगा वो बोन तक ही आपके रिड्यूस हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग इज आपका जो वर्टिकल डायमेंशन, जैसे अब मैं नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे बैठी हूँ, तो मेरा ऐसा इतना लेंथ होता है जिसे हम मेजर करते हैं, तो आपका ये कोलैप्स्ड हो जाएगा सारा। तो ये ऐसे करते हैं, करते ही है, हाँ, क्योंकि उनकी वर्टिकल डिमेंशन कम हो वर्टिकल गई, डायमेंशन कम हो जाती है उनकी, एस्थेटिक्स सफर करेंगे। बिल्कुल एस्थेटिक फंक्शन भी, आपके टीएमजे में पेन होनी शुरू हो जाएगी, जब पेन आएगी, सारा पेन सिर पे रेडिएट होगा, हाँ। बैक पे रेडिएट होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, पहली बात तो हमें पहले उसकी इटियोलॉजी देखनी कि आप ऐसा हो क्यों रहा है, हाँ। उसको डील करके उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे एफएमआर या जो भी इंडिकेटेड है प्रोसीजर है। और गाइस यहाँ पे डॉक्टर समदा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर पेशेंट, ये वाला पेशेंट जिसकी जिसकी जनरलाइज अट्रीजन हो रही थी, मतलब जनरलाइज सारे दांत घिस रहे थे उसके मुंह में, अब ये पेशेंट ने काम नहीं करवाया एफएमआर का, ठीक है, दांत उसके पूरे बोन लेवल पे आके दिखना बंद हो गया, दांत दिखने बंद हो गए, बोला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा। अब ये पेशेंट जब इवेंचुअली आएगा, मेरे को दांत चाहिए, हम इसको कर लेंगे इम्प्लांट लगा, अब इम्प्लांट भी इस केस में फेल हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोड तो उसको कितना है। अरे भाई, जो भगवान ने दांत बना के भेजे थे वो आपका लोड नहीं सह पाए, एंड आप बोलो कि इम्प्लांट करा लूंगा। हम तो हैं, मेरी स्पेशलाइजेशन इम्प्लांट्स करने की ही है, बिल्कुल, लेकिन बट वो कितना आपके लिए नॉन ट्रॉमेटिक प्रोसीजर हो सकता था अगर आप एफएमआर करवा लेते टाइमली, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी थी इम्प्लांट्स की। आपको एक चीज की है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लाइक पहले ही उन्होंने प्रिवेंट करोगे, वो इन किसी ना हड्डी तक घिसे ना देयर इज वन मोर सेइंग इज लेस ट्रीटमेंट इज बेटर देन मोनो राइट, मतलब पहले तो प्रिवेंट करो, प्रॉब्लम आए ना, कि क्यों आ रही है, अगर हो गया तो भाई कम ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इवेंचुअली इतनी एडवांस साइंस हो गई है। जैसे अब मैंने ब्लैक डॉट देखा अपने टीथ में, जब वो रूट पूरा पल्प तक पहुंचे, नसों तक पहुंचे, उससे पहले उसको फिल फिर करा करा लो, लो, हाँ। रूट केनाल तक पहुंचे ना, फिर रूट केनाल आएगी, फिर कैपिंग, देन पेशेंट्स को लगता है इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। यस, और जो हमने ये बात करी थी ना पहले कि ये जो टीएमजे जॉइंट की प्रॉब्लम, टीएमडीज की बात करी थी, अगर ये पेशेंट अपना पहले टाइमली ट्रीटमेंट कराए तो उसको भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो गाइस, अगर आपके घर में आप देखो अपने पेरेंट्स के या अपने खुद के, मगर आपके दांत घिस रहे हैं, आपका जो इनेमल है ना वाइट कलर का होता है, वाइट की डिफरेंट शेड हो सकती है, किसी का ऑफ वाइट होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन अगर आपके दांत में एक अलग से येलो येलो दिखना शुरू हो गया है, तो येलो दांत का इंटरनल पोर्शन होता है, उसको डेंटिन बोलते हैं। वन मोर थिंग इज सेंसिटिविटी पूरे दांत Yes, में होने और अगर सेंसिटिविटी होने लग गई है तो दैट मीन्स आपका इनेमल घिस गया। घिस गया। हर दांत के ऊपर भगवान ने 2 से 4 mm 5 mm इनेमल बना के भेजा है यस यस, हर इंसान के मुंह में। अगर वो घिस गया है तो वो 2 to 4 mm आप रिस्टोर करवा लो, करवा, नहीं तो यू विल एंड अप गेटिंग मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, मोर ट्रॉमेटिक ट्रीटमेंट। एंड सर न्यू, अब इतनी लाइक एडवांस जनरेशन चल रही है, तो जरूरी नहीं आपको कैप ही करवाना उसके ऊपर, यू कैन गो फॉर ऑनलेस, On- क्राउनलेस, विनियर्स। यस यस, अरे तू बताओ ना क्या है ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर ये बताओ ऑनलेस क्या है, मतलब एक तो क्राउन सुना हमने, ये ऑनले ऑनले क्या है? आई टेल यू वन थिंग, क्राउन में क्या है, जैसे हमारा कोई दांत है, उसकी 4 साइड्स होती है, मीजियल, डिस्टल, बक्कल, लिंगुअल या पैलेटल, तो हमें क्राउन के लिए चारों साइड से उसको डिजाइन करना पड़ता है, लाइक थोड़ा कट करना, प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्राउन की, तुत की, बट उसके बाद हम क्या करते हैं, 360 डिग्री क्राउन होता है, वो पूरा चारों साइड से। यस, अब हमारे ऑनलेस विनियर्स में क्या होता है, विनियर्स में क्या होता है, बस हम एक सरफेस को घिसा रहे हैं, लाइक बाहर वाला सरफेस दिखता या है। जो दिख रहा है, जो एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं और बिल्कुल थिन सा शेल लेके आपको बॉन्ड कर देंगे। सेकंड इज ऑनले, ऑनले में क्या है कि सिर्फ आपका जो अक्लूजल सरफेस है, जो जेड़े दांत आप मिलाते हैं, उत्ते वाले सरफेस ਨੂੰ ही आप कवर करांगे, थल्ले वाले सरफेस जो तुत का पार्ट गम के पास है उसको कुछ कवर नहीं करेंगे, इन कॉन्टैक्ट्स भी नहीं छेड़ेंगे आपके। एंड बहुत आजकल टर्म्स आ रही हैं, विनियर ले, क्राउन ले, हाँ, यस, दैट आर वो सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। मतलब 360 डिग्री कट करने की जरूरत करने भी नहीं है, जितना दांत के पोर्शन को हमें मिनिमम चाहिए
हम वो लिथियम डाइसिलिकेट से वो बना आई देंगे। टेल यू वन थिंग, कई पेशेंट्स डरते कि मेरा ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਆਉਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾर्ट ऑफ टीथ जो कि घिस गया उसी को रिस्टोर करवा लो, बाकी किसी को टच मत करवाओ। आजकल तो इतने एडवांस मटेरियल्स आ रहे हैं, एडवांस सीमेंट्स आ रहे हैं हमारे, हाँ। जिसके साथ लाइक वो निकलेगा ही नहीं इतनी जल्दी। अच्छा, ये भी एक फनी क्वेश्चन है, पेशेंट बोलते हैं इन फेविक्विक ना जोड़ोगे। ये जो क्राउन ये फेविक्विक नहीं, अंबुजा सीमेंट के साथ जो हमारे एक पेशेंट ने बोला है बढ़िया अंबुजा सीमेंट लाए हो हैं। यस यस तो आप ये बताओ कि ये जो क्राउन को दांत के साथ कैसे जोड़ते हैं? सर, क्राउन दो तरह के सीमेंट्स कहते हैं हम बेसिकली उनको। दो तरह के सीमेंट्स होते हैं। पहले तो हमने जो दो तरह के कैप्स थे, टेम्परेरी कैप को लगाने के लिए टेम्परेरी सीमेंट्स होते हैं, और जो परमानेंट कैप को लगाने के लिए परमानेंट सीमेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ सिंह डेंटल केयर पे हम बेस्ट ब्रांड्स यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ GIC, रेजिन सीमेंट, RMGIC, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बेस्ट कंपनी, आइवोक्लार, GC, 3M, सारा उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो GIC है जो बेसिकली तुथ को केमिकली बॉन्ड कर रहा है दांत को हमारे साथ, लाइक कैप को दांत के साथ केमिकली बॉन्ड कर रहा है। सेकंड इज उसमें मॉडिफिकेशन हुई, रेजिन इन्फिल्ट्रेशन हुई, जिससे कि स्ट्रेंथ GIC की बढ़ गई। उसके बाद और एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गया हमारे पास रेजिन सीमेंट, जो कि बिल्कुल ही बॉन्ड हो रहा है। उसके थोड़े कॉम्प्लेक्स टेक्निक, सेंसिटिव स्टेप्स हैं। हाँ बिल्कुल। यस, तो आजकल रेजिन सीमेंट सारे जो हम विनियरले, ऑनलेस, क्राउनलेस रेजिन तो सीमेंट इतने अच्छे आ गए हैं, वो Yes. बेसिकली बॉन्ड होते हैं दांत, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपका प्रोस्थेसिस है वो उसके साथ दांत के साथ जुड़ ही गया, जुड़ गया। इतना फर्म हो जाता है कि अगर बाई चांस हमें उतारना पड़े तो हम अंबुजा सीमेंट है। वो अंबुजा सीमेंट वाला ही जोर जो है वो Yes. लगता है, राइट। चलिए मैम, अच्छा मैम, एक आप मतलब ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं, कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास, है ना, एंड पेशेंट्स बोलते हैं हमें फिक्स दांत लगवाने हैं, एंड वो उनका मेडिकल फिटनेस ऐसा नहीं है कि हम उसको इम्प्लांट्स लगा सकें, एंड दे विल एंड अप गेटिंग डेंचर्स ओनली। Yes. तो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट डेंचर्स आल्सो, कि पहले तो ये सुनते थे कि ये डेंचर्स की क्या लाइफ होती है, पहले वो ग्लास में रखते थे, ऐसा बहुत भी लोगों ने सुन रखा है, राइट। तो टूट जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, ये सारी चीज़ें डेंचर्स के अराउंड है। तो थोड़ा डेंचर्स के बारे में आप ओवरव्यू बताओ, और क्या एडवांसमेंट जो है वो डेंचर्स की एडवांसमेंट जेडी हो गई हुई है। ओके, बेसिकली डेंचर पे मूव करने से पहले आई टेल यू वन थिंग, अगर आपके मुंह में कोई दांत रिमेनिंग है, कोशिश करो कि उसको बचाओ पहले। हाँ लाइक डेंचर हम ओवर डेंचर्स देते हैं, दांत टूथ सपोर्टेड डेंचर्स भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे दांत, जब आपको भी पता है जब हम दांत निकाल लेंगे तो बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा, हड्डी बहुत थल्ले जानी शुरू हो जाती फेस जाएगी, हाँ। यस, रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी और विद एज वो बढ़ती ही रहेगी। तो पहले अगर आपको कोई मुंह में दांत है तो उसको बचाने की कोशिश करो, उसके ऊपर ओवर डेंचर दे दो, टूथ सपोर्टेड ओवर डेंचर, जैसे हम देते हैं कि दांत को बचा के उसकी रूट कैनाल करा के कोपिंग्स दे के ऊपर डेंचर दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट के मुंह में 2-3 दांत हैं तो उसको डेंचर लगाने के उनको निकालना नहीं है, हाँ, वो क्योंकि ओवर डेंचर लगवा सकता है। ओल्ड ओवर, सेइंग है प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट रिमेन्स, Yes. उसको करना ही चाहिए। यस, ओके, तो ओवर डेंचर लगा सकता है, यस ओके यस फाइन। यस, ओवर डेंचर्स उसके बाद ठीक है, कंप्लीटली डेंचरलेस है, कोई मुंह में दांत नहीं है, ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੀੜ ਜੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਵੀ 4-5 ਸਟੈਪਸ ਹੋਤੇ हैं। ਕੱਚਾ ਮੇਚਾ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਮੇਚਾ ਲਿਆ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਦੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। हमने सारा एक सेंट्रिक रिलेशन होता है, उसको चेक करना होता है। जैसे भगवान ने हमारा TMJ को पोस्टीरियर मोस्ट पोजीशन पे रखा है, वैसे ही हमने उसको रिकॉर्ड करना है, वो सही आया है। पेशेंट को भी दिखा दिया कि हाँ देख लो, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, कलर ठीक है, शेप ठीक है, देन उसके बाद हम उसको फाइनल करते हैं। तो इसमें भी बहुत एडवांसमेंट आ गया, आजकल अनब्रेकेबल डेंचर्स आ गए हैं। अच्छा, टूटते नहीं है। यस, जैसे अब मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए, हर स्टेप में एक मॉडिफिकेशन है और वो एडवांस बन गई। जैसे आजकल बहुत इंप्रेशन मटेरियल्स में मॉडिफिकेशन हो गई है, तो वो अल्टीमेटली डेंचर्स बेटर फिट हो रही है, रिटेंशन बेटर हो रही है, स्टेबिलिटी बेटर हो रही है डेंचर्स की। उसके बाद टीथ, बहुत तरह के दांत होते हैं, लाइक एक होते हैं 100 रुपए के भी मिल जाते हैं, एक होते हैं अच्छे आइवोक्लार के, यूरोपियन ब्रांड है जो, तो उस सब में मॉडिफिकेशंस आई है। और अल्टीमेटली डेंचर बेस्ड मटेरियल जिसे आप अपना दांत बनने हैं, लाइक डेंचर बनना है, वो कौन से मटेरियल का है, लाइक ब्रेकेबल है, वेलप्लास्ट मटेरियल का है, ये सब एडवांसमेंट्स हैं। यस, और कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस मैम हमारे पास आते हैं, कोई डेंचर वीयर पेशेंट बुजुर्ग लोग ही होते हैं
ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਂਚਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਦ ਘਿਸ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? फर्स्टली सारा कैसा पेशेंट है, लाइक चल फिर पा रहा है पेशेंट, सब कुछ जज करके इफ हमें लग रहा है कि हाँ घिस गया दांत, तो वी गिव द न्यू सेट ऑफ डेंचर। हुँ, कि बहुत 10 साल 12 साल के बाद डेंचर मोस्टली चेंज हो जाता है, क्योंकि इम्प्रेशन चेंज हो जाता है, लूज हो जाते हैं नीचे वाले दांत, दांत घिस जाते हैं, तो चेंज करवा लेना चाहिए डेंचर 10-12 साल के बाद। ये 10-12 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਲਾਸ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਂਚਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨ ਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਹੋਰ ਖੁਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੈਂਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਚਰ ਦੇ ਟੀਥ ਨਹੀਂ ਘਸਦੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yes. ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਇਰੀਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੰਦ ਅਗਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 50% ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਚਿਊਡ ਫੂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, यस। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। डाइट पे भी वो है ना कि अच्छे से खा पी पा रहे, इरिटेट भी कम होते हैं, हेल्दी भी रह रहे, तो बहुत फैक्टर्स है। यस, रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ इज मस्ट। ਰਾਈਟ। ਚਲਿਏ ਮੈਮ, ਹਮ ਅਬ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਨ ਵਨ ਲਾਈਨ। ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਲਵਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? इट्स अ मिथ। ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ। हाँ बिल्कुल, रूट कैनाल करवानी इज नॉट अ नेसेसिटी। तो वाइटल जो रूट कैनाल के बिना दांत है, वाइटल दांत पे भी वी कैन गिव द क्राउन विनियर्स ऑनलेस। यस, अगर वही स्पेशलिस्ट करेगा तो वो प्रॉपरली जो उसकी डिजाइनिंग है वो एक्यूरेटली करेगा, ओवर कट नहीं डिजाइनिंग करेगा। विल बी अकॉर्डिंग टू द एनाटमी। यस। यस, हम्म। ओवर प्रिपरेशन नहीं होगी तो सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। राइट। अच्छा मैम, ये भी लोग सुनते हैं कि यार अगर ये जो मैं स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर करा लूंगा ना, तो मेरी स्माइल बहुत अजीब लगेगी, डिफरेंट लगेगी। अरे आपको पहले रिजल्ट्स दिखा दिए हैं, हाँ। आपने ओके क्या, उसके बाद ही हमने शुरू किया। तो अगर आपको पहले ही अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन टेल अस एट एनी स्टेज कि हाँ इसको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक करो, देन विल डू इट, करेक्ट इट। आजकल तो ये एडवांसमेंट है कि एंड रिजल्ट आपको पहले दिखाया जा रहा है, हाँ, कि आपको पहले पता कि हाँ ऐसी स्माइल लगनी है। तो जैसे आर्किटेक्चर दिखाता है ना, वो पहले 2D दिखाता था, अब वो 3D दिखाने लग गया है ना? वो आँख के आगे वो भी आजकल डिवाइस लगा के भी दिखाते हैं कि ऐसा आपका घर दिखेगा। सेम वे स्माइल डिजाइनिंग में हम पहले भी देख सकते हैं। डिजिटल ही हो गई, अब तो सब डिजिटल हो गया, आपको पहले ही दिखा देंगे, लाइक फेस स्कैन कर लेंगे आपका, आईपैड पे आपको पहले ही दिखा देंगे कि आपके तीर ऐसे लगेंगे, उसके बाद मॉकअप करके आपको टेम्परेरीज भी वैसे दे देंगे कि हाँ आपकी फाइनल स्माइल विल बी लाइक दिस। तो उसी के अकॉर्डिंग टूथ प्रेप करेंगे, फिर वो ऑल और ही मिनिमली इन्वेजिव होएगी, कि जहाँ से हमें लग रहा है कि इसको घिसना है वहीं से घिसेंगे, प्रिपेयर करेंगे, दूसरी साइड से नहीं करेंगे। अच्छा मैम, कई बार पेशेंट इस ट्रैप में भी फंस जाते हैं कि हर आरसीटी वाले दांत के ऊपर कैप कराना चाहिए। नो अच्छा, हर आरसीटी वाले के दांत, नो नो नो, वो बताओ आप थोड़ा। लाइक सी, इफ लाइक ना ये क्लासिफिकेशन है, अगर आपकी चारों वॉल्स इंटैक्ट है दांत की, तो आपको लाइक सेस कैविटी, आपकी रूट कैनाल सिर्फ इतनी सी सेस कैविटी से हुई है, उस दांत को क्राउन नहीं करवाना। सर के भी मुंह में एक दांत है जिसका आरसीटी हुआ है, हमने कैप नहीं किया उसका। ये यस, तो हर आरसीटी वाले दांत के ऊपर कैप नहीं कराना। मेरे मुंह में 2 आरसीटी हुई हैं, एक पे कैप लगा, एक पे नहीं लगा, राइट? बोथ आरसीटीज हैज बीन डन एट सिंह डेंटल केयर एंड वन ऑफ द क्राउन हैज बीन गिवन बाय डॉक्टर समीदा ओनली। तो हर आरसीटी वाला दांत उसके लिए इंडिकेटेड नहीं होता। बिल्कुल अच्छा मैम, बच्चों में कहते हैं क्राउन नहीं करानी चाहिए। नहीं, बच्चों में क्यों नहीं, बहुत तरह के बच्चों की तो और बायोफ्लेक्स क्राउन्स हैं, बहुत तरह के कस्टमाइज परमानेंट टीथ पे मतलब किस एज में क्राउन लगानी चाहिए? जिस एज में आपका दांत खराब हो गया, बच्चों के तो पक्का करने चाहिए, इतनी ज्यादा बच्चों की लाइफ है, उन्होंने खाना पीना, उसमें तो बहुत जरूरी है, बच्चों के तो और भी जरूरी है। अब आप देखो ना, अगर आपके बच्चे के मुंह में रूट कनाल हुई है, या अगर आपके बच्चे को डेंटिस्ट ने चाहे पीडोडोंटिस्ट ने, बच्चों वाले डेंटिस्ट ने, या कैप क्राउन स्पेशलिस्ट ने रिकमेंड किया कि इस पे कैप लगना चाहिए, तो आपके बच्चे की अगर एज आज 10 साल 12 साल 15 साल है, तो कितनी लाइफ आगे बढ़ी है? बिल्कुल। एंड टीथ आर द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी हु आर नॉन सेल्फ रिपेयरेबल।
एंड मैम चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सो मच नॉलेज इन अ सिंप्लीफाइड वे। मैं चाहूँगा कि आप कोई फाइनल मैसेज टू द ऑडियंस देना चाहें तो? माय फाइनल मैसेज इज़ कि अगर आपके कोई मुँह में दाँत नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ इज़ इम्पोर्टेंट। अगर सिंगल भी कोई दाँत नहीं है, तो क्या होता है कि आस-पास वाले दाँत माइग्रेट होने लग जाते हैं। ऊपर वाला दाँत नीचे आने लगेगा, आस-पास वाले दाँत विल बी मूविंग टुवर्ड्स द एम्प्टी स्पेस। देन उससे क्या होगा कि आपके फिर सारे आगे डेंटिशन में स्पेसिंग आने लग जाएगी, दैट विल अल्टीमेटली गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सो अगर आपको लग रहा है कि नाउ एक भी टीथ नहीं है, तो उसको उसी टाइम रिप्लेस कराओ। रिप्लेस कराओ और एंजॉय करो, राइट? राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर समिधा फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत अच्छा रहा आपके साथ डिस्कशन करके, मज़ा आया। आपने बड़ी सिंप्लीफाइड वे में समझाया एंड आप इसी तरीके से खुद भी हंसते रहो, सिंह डेंटल केयर के पेशेंट्स को भी हंसाते रहो, राइट? एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।